वेलकम टू द हाइफा क्लासेस एंड हाइफा नरिश टू योर ब्रेन थ्रू एजुकेशन। आज के इस लेक्चर नंबर थर्ड में, जो कि एक्चुअली हम सबने पिछले कुछ लेक्चर्स जो हमने लेक्चर नंबर फोर जिसमें हमसे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया, और उसी के साथ साथ लेक्चर नंबर टू में बच्चा हम सबने बैलेंसिंग और कुछ केमिकल इक्वेशंस के सिंबल्स और इनके राइट कैसे होते हैं इन सभी के बारे में हम सबने यहाँ पे डिस्कशन किया। हम इस लेक्चर नंबर थर्ड में बच्चा, जैसा कि आपको हमने एक्चुअली प्रॉमिस किया 3 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को पूरा कवर करना। दिस लेक्चर्स इज totally depend on the types of chemical reaction. Okay, so now here is the types of chemical reaction। जो अगर बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में डिपेंडेंट होता है यहाँ पे बच्चा किसके ऊपर, नेचर ऑफ द रिएक्शंस के ऊपर। तो हम सब अगर प्रॉपर में बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। Okay, so here is the first step of the reaction, that is the combination reaction. What is the means of the combination reaction? That is a combination reaction in the means a reaction in which two or more reactant combine to form a single product, and is called the combination reaction. What again told, when is the two type of the combination, when is the two type of the reactant combine to each other and form the a single product, that is the term is told the combination reaction. Okay, now here is the told with the some formulas like that, A plus B, these are two type of the reactant and combine to formation of the C, that is the type of the reaction is called combination reaction. Here is the some example are given. Calcium oxide in the sense CaO. Okay, when is the react vigorously with water, through water, what is the formation to here bacha? When is the calcium oxide react with the water, that is the formation of the calcium hydroxide, that is a slacked line, that is a calcium hydroxide. अगर बच्चा बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये अपने एक्वस फॉर्मेशन में होते हैं, वाटर इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड एंड द कैल्शियम ऑक्साइड इज अगेन इज द फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड. ओके, तो दिस two types of reactant, more than two types of the reactant, when is the combined to each other and formation of the a single product, that is term is known as a combination reaction. Got it? I hope आपको clear हो गया होगा. Now I am to come on the some notes here, that is a solution of calcium hydroxide slacked lime, जो कि बच्चा एक्चुअली हमने भी पिछले रिएक्शन में देखा है, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल. हम इसका यूज किस पर्पज से करते हैं बच्चा, व्हाइट वॉशिंग वॉल में. Now calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate. क्या फॉर्म करता है बच्चा, एक थीन लेयर, वो भी किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑन द वॉल्स विच गिव अ शाइनी अपीयरेंस, जिससे आपका जो वॉल होता है एक शाइनी अपीयरेंस देता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days व्हाइट वॉशिंग. और यहां पे बच्चा ये कुछ टाइम टेकन लगता है, दैट इज 2 to 3 days. नाउ हियर इज व्हाट आई टोल्ड टू हियर, दैट हियर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और उसी के साथ साथ वाटर के साथ जब रिएक्ट किए, टू रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर रिएक्ट ईच अदर इन द फॉर्मेशन of the calcium hydroxide. These are the product and this is example of the combination reaction. But what I told to here, this type of calcium hydroxide means slacked lime is used for white washing wall. How to? Now here the calcium hydroxide Ca in the bracket OH2, when is the react with the CO2 in the form of gas. Okay, and the calcium hydroxide in the form of aqueous. Both of the react together and the formation of calcium carbonate. What is the formation? Calcium carbonate with the here some water loss here, that is in the form of water. Okay, and the calcium carbonate in the form of solid. Okay, so these are, that is the calcium hydroxide, these are the CO2, carbon dioxide, and these are the calcium carbonate, and these are the water. So here is the formation of कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक्चुअली प्रॉपर में क्या करेगा, एक शाइनी अपीयरेंस देगा हमारे वॉल को. आई होप क्लियर हो रहा होगा बच्चा आप सबको ये पॉइंट. नाउ आई एम टू कम ऑन द बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है बर्निंग ऑफ कोल. कोल एक्चुअली में अगर बात किया जाए बच्चा, दैट इज मेड ऑफ द कार्बन. किसका बना होता है बच्चा, कार्बन का. कार्बन प्लस एक्चुअली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होगा, दैट इज द कार्बन व्हेन इज रिएक्ट इन द oxygen react with the oxygen, that is the formation of the CO2 actually अगर बात किया जाए, these are the formation of gas, oxygen actually in the form of gas and carbon in the form of solid, because in the form of the coal. Okay, now after to that reaction between hydrogen gas and the oxygen gas to form
अब आप ही बताओ, हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस बोथ आर द टुगेदर रिएक्ट, देन व्हाट इज द फॉर्मेशन टू हियर, दैट इज द सर फॉर्मेशन ऑफ द H2O molecule. किसका बच्चा? H2O molecule. And this H2O molecule actually these are formation of liquid. Okay. Clear बच्चा? And the hydrogen is the form of gas and the oxygen also in the form of gas. Okay. So this is also a type of combination reaction. Why? Because in the burning of coal, carbon and oxygen are the reactant who's combined each other in the formation of the single product, that is the CO2. And in the reaction between hydrogen gas and the oxygen gas to form, that is the hydrogen and oxygen both are the reactant who is combined to each other in the formation of the water molecule. These are the terms of the combination reaction. Now I want to come on the next reaction, that is the decomposition. What is the means? Decomposition? Decomposition in the sense breakdown. Oh my god, decomposition, a reaction in which a single reactant break down to form a two or more product. बच्चा कभी भी कोई भी एक रिएक्टेंट या सिंगल रिएक्टेंट अपने आप को ब्रेक डाउन करके टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, इन्हीं को हम सब बोल देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये अपना जो रिएक्शन होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट हो. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे, और जबकि यहां पे डीकंपोजिशन में सर एक सिंगल रिएक्टेंट अपने आप को डीकंपोज करके टू और मोर देन टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. ऑब्वियस सी बात है बच्चा, किसी को ब्रेक करना है, सिंपल सी बात बताओ, कोई भी टर्म हो जो एक्चुअली एक ग्रुपिंग फॉर्मेशन, किसी भी ग्रुप को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. भाई साहब आप या तो अपने फ्रेंड को देख लो, अपने किसी भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड को, अगर उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड को ब्रेक करना है तो आपको अच्छी खासी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है. सेम लाइक दैट अगर कोई कपल है, उनके बीच का भी जो बॉन्डिंग है उनको भी ब्रेक करने के लिए आपको अच्छी खासी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है. तो ये तो खैर एक कंपाउंड है. समझ में आ रही है आप सभी को बात? ओके, सो हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन आर नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन. बट बाय द वे अगर बात करें इस डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी बारे में, तो यहां पे हमने बोला कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड होगा एनर्जी. अब ये एक्चुअली यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस टाइप की एनर्जी. ओके, अगर यहां पे हम हीट दे रहे हैं तो वो एक्चुअली थर्मल एनर्जी हो जाएगी. अगर हम इलेक्ट्रिक के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी. अगर वो लाइट के फॉर्म में आ रहा है तो वो अपना लाइट का एनर्जी कहलाएगा. बट बाय द वे इन सभी एनर्जी को हम डिफरेंट नेम देते हैं. दैट इज द फर्स्ट. अगर किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हम उसको बोल देते हैं थर्मल डीकंपोजिशन. व्हाट आई से टू हियर? थर्मल डीकंपोजिशन. दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ डीकंपोजिशन फॉर डीकंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट. हम रिएक्टेंट को यहां पे डीकंपोज करते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द फॉर्म प्रेजेंस ऑफ heat. Okay, here is some example. Calcium carbonate on heating decompose to give calcium oxide and carbon dioxide, and calcium oxide is used for manufacturing of the cement. Okay, now after to that हम यहाँ पे बच्चा हमें क्या बोला गया? calcium carbonate. Okay, calcium carbonate means CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट को जो एक सॉलिड के फॉर्मेशन में है, वन इज अ हीट हियर, देन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बच्चा एक सॉलिड फॉर्मेशन करेगा और CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा. क्लियर? समझ में आया बच्चा? नाउ दीज आर द कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लाइमस्टोन एंड दीज आर द कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विकलाइम एंड दीज आर द लाइमस्टोन. ओके, sorry. Now next is the example is ferrous sulfate, that is a green crystals. Sorry, here is a spelling is wrong. Crystal ferrous sulfate that is in the presence of the water molecule on heating lose water crystallization and form dehydrated, that is a ferrous sulfate, which on the decomposition give ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay. What I told to here, when is a ferrous sulfate in the form of solid and applied heat here, then what is the formation to here बच्चा? Fe2O3, that is a ferric oxide, and उसी के साथ में बच्चा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. These are also in the form of gases. Sulfur trioxide also in the form of gases and ferric oxide in the form of solid. ओके, अगर बच्चा देखा जाए इसमें बैलेंसिंग की तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 लगेगा. ओके, नाउ सेकंड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोज द गिव एलो लेड मोनोऑक्साइड
and nitrogen dioxide and oxygen gas. Oh my god, what I told to here, lead nitrate, that is a PbNO3 twice. When is the provide heat, then what is the formation to here, lead oxide and nitrogen dioxide and oxygen. Okay, now here is the lead oxide and these are the nitrogen dioxide. Clear bacha? And these are the oxygen, that is the lead nitrate, and this is also a type of decomposition. And in which type of decomposition? That is the thermal decomposition, because here is the applied of heat. Now after that I come on the electrolysis method. That is electrolysis की बात करें तो this reactions involve the use of electrical energy. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे डिकम्पोजिशन के लिए, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए. सो दैट इज द फर्स्ट टू हियर, व्हेन इज द अप्लाइड, हियर इज द हीट, not heat, energy in the form of electrical energy. Okay, first is the told, when electrical current pass through the water, it decompose to give oxygen and hydrogen. Okay, what I say to here, when is the water, that is in the form of liquid, when is the here provided electric current, then what is the formation of here, hydrogen gas and oxygen gas. Okay, so here is a do balancing also. Okay, now second is when electric current is passed through molten sodium chloride. Okay, molten sodium chloride NaCl, that's in the formation molten है तो बच्चा लिक्विड फॉर्मेशन में रहेगा और इसमें हम सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं. देन व्हाट इज द फॉर्मेशन टू हियर, सोडियम एंड क्लोरीन. क्लोरीन जो होगा बच्चा वो अपना Cl2 एक्चुअली हमारा क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन में होगा और अपना सोडियम यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन में होगा. ओके, एंड हियर इज अ बैलेंसिंग डन. ओके, तो दीज आर द इलेक्ट्रोलिसिस जो कि आपके एनसीईआरटी में भी बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है. फटाफट आप इनको देख ले. हैव एनी डाउट देन आस्क विद मी, एंड हैव एनी डाउट ऑफ द हैव एनी डाउट देन बिलो द कमेंट यू पुट हियर. ओके, एनी क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस बच्चा. फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, हम क्या बोल देते हैं बच्चा इसको, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ये रिएक्शन एक्चुअली प्रॉपर वे में देखा जाए तो ये भी डिकम्पोजिशन पर्पज से होता है, बिकॉज यहाँ पे एक लाइट के फॉर्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. और बच्चा अगर बात किया जाए प्रॉपर वे में तो हमारे से यहाँ पे लिया, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. व्हाट इज द टोल्ड टू हियर, AgCl. ओके, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. बच्चा अगर बात किया जाए प्रॉपर तो ये एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा, Ag जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और क्लोरीन जो कि गैसियस फॉर्म में क्लोरीन गैस. ओके, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो ये हमारा इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा टोटल. नाउ हियर इज हमारा सिल्वर क्लोराइड जो एक्चुअली प्रॉपर वे में यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है. ये भी एक डिकम्पोजिशन है जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी एक टाइप से हमारा रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. नाउ हियर इज सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड गिव्स सिल्वर मेटल एंड द ब्रोमीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. व्हाट इज टोल्ड टू हियर, AgBr. ओके, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, एंड द सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चा ये क्या करेगा, अपने को ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके Ag प्लस Br2 जो कि गैसियस फॉर्मेशन में होगा इनका फॉर्मेशन कर देगा. ओके, these are the type of the photolysis, that is a photochemical decomposition. I hope आप सभी को बच्चा समझ में आ रहा होगा. अगर बात किया जाए जो दोनों ही रिएक्शन होते हैं बच्चा, these reactions of decomposition, वो भी कौन से decomposition, photochemical decomposition, या फिर हम इसको बोल देते हैं photolysis. ओके, ये किस में यूज होता है बच्चा, आर used photolysis of, एक्चुअली थोड़ा सा बच्चा सॉरी यहाँ पे हम सब अपडेट कर देते हैं. फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड. ओके, व्हाट, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड is used for
किसके लिए बच्चा? व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो हमारा जो यहाँ पे बच्चा, हमने फोटोलिसिस को देखा, फोटोलिसिस के जो हमारे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का यूज बच्चा हम सब किसके लिए करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। ओके, नाउ आफ्टर टू दैट अगर बात किया जाए बच्चा, तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि दीज आर यूज फॉर द व्हाइट फोटोग्राफी। आप यहाँ पे इस टर्म को देख सकते हो। ओके, नाउ एंड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन द सेंस द रिएक्शंस, या फिर बच्चा ये जो पूरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये डिपेंड होता है बच्चा वेदर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि हमारा जो हीट है वो इवॉल्व हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बच्चा। और अगर बात करें रिएक्शन की, तो ये एक्चुअली हमारे इन्हीं के बेस के ऊपर हम इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। द रिएक्शन विच आर accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction। क्या मैंने बोला बच्चा? रिएक्शन विच आर accompanied by evolution of heat। क्या बच्चा? evolution of heat। ओके, that is the term is called the exothermic। first is the burning of natural gas। burning of natural gas की अगर बात करें तो बच्चा हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस हम इसको ले सकते हैं मीथेन, that is a CH4, that is a react with in the presence of ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चा कोई भी बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो, ऑक्सीजन प्रेजेंस में ही होगा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 गैस। ओके, साथ में बच्चा वाटर मॉलिक्यूल एंड हीट। ओके, तो ये एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेशन दे देगा। क्लियर? नाउ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि बच्चा हम सब ने तो अभी पढ़ के ही आया है, that is a Mg+O2, that is given to you MgO, साथ में बच्चा हीट फॉर्मेशन दे देगा। ओके, नाउ हियर इज the decomposition of the vegetable matter into the compost is also example of the exothermic reaction, you know very well। now I want to come on the endothermic reaction। endothermic the reaction which occur by absorption of heat or energy, है ना। हम यहाँ पे बच्चा जो यहाँ पे हीट और एनर्जी की बच्चा बात हो रही है, तो मैं भी पिछले ही टर्म में समझा के आया हूँ। ये एनर्जी, ये आपके हीट जो होंगे, हीट के फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं, लाइट के भी फॉर्मेशन में हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्मेशन में हो सकते हैं। ओके, तो द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज टर्म इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बच्चा मैंने बोला? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई विल टेक हियर सम एग्जांपल। एग्जांपल में बच्चा अगर बात किया जाए, तो जैसे कि हम अगर बात करें CO2, क्या CO2 in the presence of water, what is the formation तो? C6H12O6। ओके, साथ में बच्चा अपना ऑक्सीजन गैस देगा और वाटर मॉलिक्यूल। अगर बात करें वहां पे, तो हमारा CO2 कितना होना चाहिए? टोटल 6 होना चाहिए। वाटर कितना होना चाहिए? टोटल 12 होना चाहिए। और साथ में हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी अगर देखा जाए 6 होना चाहिए, और वाटर मॉलिक्यूल भी 6 होना चाहिए। ओके, ना आफ्टर और भी हमारे ऐसे एग्जांपल है बच्चा। यहाँ पे हमारा हीट जो होगा वो इवोल्यूट होगा, और ये एक्चुअली जो पूरा रिएक्शन है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है बच्चा। बाय द वे, इसको हम सब क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस भी बोल देते हैं। ओके, जो कि आगे हमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ना भी है। ओके, क्लोरोफिल। नाउ और भी बच्चा हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बच्चा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या बच्चा? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये अपने को जैसे हीट यहाँ पे ऑब्जॉर्व होगा, ये क्या देगा बच्चा? ये अपने को देगा मर्करी, सेपरेट कर देगा और ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन दे देगा। ओके, नाउ हियर इज मर्करी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। क्लियर? दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इन रिएक्शन की भी बात करें बच्चा, हमारे जब कोई दो टाइप के ये भी रिएक्शन होते हैं, दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, जिनके बारे में बात करना है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट को बच्चा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर एंड द एलिमेंट react with a compound and take the place of another element in that compound, that is called the single displacement।
Here is I'll take example. There is zinc being more reactive than copper and displace the copper from copper sulfate solution and form new product that is a zinc sulfate and कॉपर। बच्चा एक्चुअली हम सब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम सबको थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज को अपने माइंड में रखना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय द वे अगर बात किया जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको कुछ नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। ओके, तो हमें वहां से एक्चुअली थोड़ा इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमें उस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये आइडियाज हो जाता है कि कौन हायर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है। जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही क्या करेगा बच्चा, एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। बाय द वे अगर बात किया जाए, जरा बातों को समझिए, अगर मैं कहूं these are the nature of the society, है ना, एंड आल्सो अगर बात किया जाए नॉट सोसाइटी, अगर हम कहें तो हमारे नेचर का ही ये एक्चुअली पूरा का पूरा रूल्स है। जो एक्चुअली पावरफुल पर्सन होता है वो क्या करता है, किसी न किसी जो उनसे कम पावरफुल है उनको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, उनके पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं। लाइक दैट अगर मैं बात करूं कि कोई भी मान लेते हैं, कोई भी एक बंदा, कोई भी एक कपल है, उस कपल में अगर बात किया जाए बच्चा, तो कपल को अगर ब्रेक करना है तो एक पावरफुल सोर्स चाहिए ना बच्चा, और उनसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, वो वहां से उस पर्सन को डिस्प्लेस करके अपना पोजीशन एक्वायर कर लेगा। दैट इज अ रॉन्ग थिंग, नहीं करना चाहिए बाय द वे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो हमने एक एग्जांपल लिया था जिंक का, तो हम यहाँ पे एक्चुअली इस एग्जांपल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक जो कि एक्चुअली एक सॉलिड फॉर्मेशन में है और ये बच्चा रिएक्ट हो रहा है अपने कॉपर सल्फेट के साथ। एक्चुअली में आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाके ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा जिंक होता है ये कॉपर से काफी ज्यादा एक्चुअली हमारा क्या होता है बच्चा, प्रॉपर वे में हाई रिएक्टिव होता है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेगा और बना देगा बच्चा क्या, जिंक सल्फेट, और साथ में बच्चा यहां पे कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होगा बच्चा यहां पे, और जिंक जो होगा ये फॉर्म ऑफ एक्वस होगा। ओके, तो ये एक्चुअली में क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। दैट्स व्हाई रीजन इज कॉल्ड द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ आई वांट टू कम ऑन द सम मोर एग्जांपल में बच्चा यहाँ पे हम सब देखेंगे आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऑफ कोर्स हमारा आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आप जाके बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा, अब मैं बार बार एक्चुअली आप सबने इस टाइम पे पढ़ भी चुका होगा रिएक्टिविटी सीरीज। हाना कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेनिफर आरवी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, यू नो वेरी वेल। आप जाके बच्चा इसको देखो। बाय द वे इस चैप्टर को आने दो, मैं इसको और भी अच्छे से आपको लर्न करा दूंगा। बाय द वे मैं अभी बोल तो दिया हूँ एक ट्रिक, है ना। यहां पे बच्चा अगर बात किया जाए तो हमने बोला कि सिमिलरली आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो हम यहां पे आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, दैट इज अ कॉपर सल्फेट। When is the iron react with the copper sulfate, then iron displays to the copper because iron is the more reactive element compared to copper, and here is the formation of the ferrous sulfate, and साथ में बच्चा आपको यहाँ पे कॉपर का इमिशन दे देगा। कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा। हमारा फेरस सल्फेट जो होगा एक्वस के फॉर्म में होगा बच्चा, किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में। अगर वहीं बात की जाए कॉपर सल्फेट दैट इज आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस, और वहीं भी हमारा आयरन की बात करें तो ये हमारा सॉलिड के फॉर्मेशन में होगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चा हमारा लेड, तो लेड बच्चा एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा सॉलिड के फॉर्मेशन में है, ये फिर से यहाँ पे बोला गया लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। लेड अगेन अगर यहाँ पे कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बच्चा लेड क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा बच्चा, डिस्प्लेस करेगा और बना देगा लेड क्लोराइड, और साथ में बच्चा अगेन कॉपर इज डिस्प्लेस हियर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेड क्लोराइड है वो भी बच्चा एक्चुअली अपना एक्वस के फॉर्मेशन में। क्लियर बात ना। दिस आर द टोटल डिस्प्लेसमेंट के बच्चा हम सबने यहाँ पे एक्चुअली एग्जांपल देख लिया। वो भी कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इन द कम ऑन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द टोल्ड टू हियर द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय each other, okay, is called double displacement reaction. It is also called precipitation reaction, या फिर बच्चा हम यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे आपको precipitate भी ऑब्जर्व होगा इस रिएक्शन में। Now here is the first example is the when is the sodium sulfate on adding the sodium sulfate to barium chloride। क्या बोला गया, सोडियम सल्फेट को हमें किस में ऐड करना है बच्चा, बेरियम क्लोराइड में। चलिए ऐड कर देते हैं, that is the sodium sulfate Na2SO4 in the form of aqueous, ये aqueous के फॉर्मेशन में होगा। When is the react with the barium chloride BaCl2 in the form of aqueous, ये भी होगा बच्चा। When is the react with each other then sodium is displaced, किसको बच्चा डिस्प्लेस करेगा, बेरियम को, और बेरियम कहां चला जाएगा बच्चा, अपना सल्फेट के पास। तो यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चा, बेरियम सल्फेट, और क्या हुआ यहां पे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात बच्चा। तो ये जो पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये सब के सब अगर प्रॉपर वे में देखे जाए तो ये अपना यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाएगा। ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये अपना एक्वस के फॉर्मेशन में होगा।
क्लियर। तो एक्चुअली यहाँ पे ये सब आपस में डिस्प्लेस कर लिए, पोजीशन एक्सचेंज कर लिए। ओके नाउ ऑन द एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू सोडियम ब्रोमाइड, ओके क्या सिल्वर नाइट्रेट, ओके AgNO3 in the form of aqueous. When is a react with the sodium bromide NaBr, okay, in the form of also aqueous. When is a react together, then sodium is again displace the Ag and Ag take the place of with the Br. So here is the formation of the AgBr. AgBr बच्चा अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, केमिकल्स ये प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएंगे और उसी के साथ साथ बच्चा यहाँ पे फॉर्मेशन क्या देगा अपना, सोडियम नाइट्रेट NaNO3. Okay, these are also in the form of aqueous. Okay, sodium nitrate. These are the double displacement reaction जो हमने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया, आई होप क्लियर हो रहा होगा. Now I am to come on the oxidation reaction. What is the oxidation reaction? But before to that अगर बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन जो होता है बच्चा यहाँ पे, that is a process in which the oxygen added to substance. क्या मैंने बोला, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे सब्सटेंस में, और बच्चा हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वेयर इज अ हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस, या फिर बच्चा हम इसको बोल सकते हैं प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली बच्चे आपको तीनों यहां पे टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से समझ लीजिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए. दीज आर सो मच इंपॉर्टेंट. द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड टू द सब्सटेंस, मतलब हम किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं. सेकंड इज द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस, या फिर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं. द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, जहां से कोई इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है. अगर ये तीनों बच्चा क्राइटेरिया अगर कहीं भी आपको देखने को मिल रहे हैं, हम इन्हीं को ऑक्सीडेशन बोल देते हैं. क्लियर है बात. लाइक अगर हम यहां पे बात किया जाए तो हम इसको बच्चे यहां पे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज व्हेन इज अ कॉपर इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड. ओके तो अगर बात किया जाए यहां पे तो ये एक्चुअली हमारा यहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको देखने को मिला. ओके नाउ आई एम टू कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन. दैट इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन रिमूव what ऐसा प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो सब्सटेंस से, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए सब्सटेंस में, या फिर जो भी बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर जाए उस सब्सटेंस में. हम इसी प्रोसेस को बोल देते हैं रिडक्शन. इसके भी कुछ एग्जांपल बच्चा हम सब यहां पे ले लेते हैं. दैट्स मींस अगर हम एग्जांपल लें जैसे सोडियम है बच्चा, सोडियम व्हेन इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्राइड. क्या बच्चा, सोडियम हाइड्राइड. ओके हियर इज यू ऑब्जर्व टू हियर, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, ओके एंड द ऑक्सीजन रिमूव हुआ, मतलब कि यहां पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी गेन हुआ है. दीज आर द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द reduction reaction. Okay now I am to come on the here some notes. If a substance gain oxygen during a reaction, it's said to be oxidized. जब कोई substance बच्चा यहां पे हमारा गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, हम उसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइज्ड. इफ द एनी सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. क्लियर है बात बच्चा. नाउ आई एम टू कम ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस. Again repeat, the substance which can bring about oxidation of other substance, that is called the oxidizing agent. And what is the means of the reducing agent? The substance which can bring about reduction of other substance. क्या, bring about reduction of other substance, that is called reduction agent. Clear है बच्चा, या फिर reducing agent, sorry. Now I am to come on the redox reaction. Oh my god, हमने दो टर्म पढ़ के आए, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो बच्चा ऐसा कोई रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उन रिएक्शन में दोनों ही एक साथ हो रहे हो, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ओके नाउ व्हाट टोल्ड टू हियर, रिडक्शन विथ ऑक्सीजन है ना, मतलब कि हमारा ऑक्सीडेशन विथ रिडक्शन. ओके ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन. ओके तो बच्चा रिडक्शन से इन्होंने रेड ले लिया और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, और ये दोनों ही मिला के बना दिया क्या बच्चा, रेडॉक्स. क्लियर है बच्चा, आप सभी को समझ में आ रहा है. ओके नाउ आफ्टर टू डेट अगर बात किया जाए तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है. इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड द बीइंग रिड्यूस्ड, वेयर इज ऑक्सीजन इज एडेड टू द हाइड्रोजन एंड द बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके 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 देख लेते बच्चा, क्या बोला मैंने, कॉपर oxide when it react with the hydrogen in the presence of heat, there is a formation of copper
और साथ में बच्चा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, तो दिस हाइड्रोजन when is ऑक्सीडाइज्ड, ओके, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड कॉपर ऑक्साइड, here is a lose the oxygen, that's why there is a reduction। क्लियर है बात बच्चा, आप सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज टेल। ओके ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चा तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी डालें, या फिर बच्चा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप अपने क्वेरी डाल सकते हैं। आपको इमीडिएट हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इमीडिएट सॉल्व किया जाएगा। ओके, नाउ आई एंटर कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is a corrosion। what is the means of the corrosion? I want to come on the corrosion term। corrosion की अगर बात की जाए बच्चा तो the process of slowly eating of the metals due to attack of, किसकी अटैक की वजह से बच्चा जो हमारा मेटल है यहाँ पे ईटिंग अप हो रहा है, that is ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर और भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल सो एज अ कन्वर्ट द मेटल इनटू ऑक्साइड। वो मेटल हमारा ऑक्साइड के लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही टर्म को हम सब यहाँ पे कोरोजन बोल देते हैं। नाउ हियर इज सम एग्जांपल ऑफ sorry I will take up the example from the NCERT, that is iron when it react with the oxygen then what is the formation of the here and oxygen, but actually यहाँ पे बच्चा मॉइस्चर भी होता है। ओके, मॉइस्चर के लिए हम सब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू हियर Fe2O3, ओके, एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो अगर बात किया जाए यहाँ पे, ये हमारा एयर से आएगा, ये ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से। ओके, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑन द मेटल ऑफ आयरन। ओके, दैट इज आल्सो कोरोजन। और यहाँ पे बच्चा जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा ना, ये कुछ आपको ब्राउनी फेम दिखेगा। ओके, नाउ हियर इज अ सिल्वर Ag when is react with H2S, that is a hydrogen sulfide। okay, when is the react hydrogen sulfide with hydrogen sulfide, there is a formation of the Ag2S, that is अपना सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा बच्चा, साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, दैट इज अ सिल्वर सल्फाइड। ओके, सो हियर इज द डूइंग बैलेंस। ओके ओके ओके, सारा बैलेंस हो गया। तो दीज आर द कोरोजन के कुछ एग्जांपल जो बच्चा हमारे एनसीईआरटी से है। साथ में बच्चा हमारा कॉपर भी जो रिएक्ट करता है, कॉपर बच्चा यहाँ पे आपको रिएक्ट करता है हमारे यहाँ पे मॉइस्चर एयर के साथ, और मॉइस्चर एयर के साथ रिएक्ट करके बच्चा ये आपको ग्रीन कोटिंग देता है। यहाँ पे बच्चा जो सिल्वर है, ये सिल्वर आपको ब्लैक कोटिंग दे देगा। ओके, और अगर वहीं बात करें आयरन का, तो ये बच्चा आपको रस्ट होता है, क्या हो जाता है, रस्ट, जो कि आपको कुछ यहाँ पे ब्राउनिश कलर मिलेगा। और कॉपर जब बच्चा रिएक्ट करता है हमारे मॉइस्चर से, तो ये आपको एक ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ हियर इज द मेथड ऑफ द प्रिवेंट, या फिर मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, दैट इज द फर्स्ट इज द पेंटिंग। नॉर्मली यू नो वेरी वेल हाउ टू डू पेंट। आप किसी भी मेटल ऊपर पेंटिंग कर दो बच्चा, दैट इज द प्रिवेंट कोरोजन। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक कोटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम प्लैटिंग कर सकते हैं। साथ में बच्चा ग्लेवनाइजेशन, ग्लेवनाइजेशन एक्चुअली में अगर बात की जाए तो ये एक मेथड है जिसमें बच्चा हम कोट करते हैं। किसका कोट करते हैं बच्चा, एक रिएक्टिव मेटल। और कौन सा रिएक्टिव मेटल होता है, जिंक। हम जिंक को एक्चुअली मेटल के ऊपर कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज द सरफेस ऑफ आयरन और या फिर स्टील के ऊपर, सो दैट दे कैन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज द अलॉइंग, ये एक्चुअली हमारे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम टोटली चेंज कर देते हैं, जिसके बेस पे हम यहाँ पे अपने किसी भी मेटल को कोरोज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द rancidity, the oxidation of oil, क्या बच्चा, the oxidation of oil or fat in a food resulting into a bad taste and smell is called rancidity। क्या बच्चा, हमारे कोई भी ऑयल हो या फैट हो जो हमारे फूड में प्रेजेंस होते हैं बच्चा, ये किसी भी तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बैड टेस्ट या फिर एक बैड स्मेल आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द टर्म इज कॉल्ड रैंसिडिटी। एंड हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट बच्चा ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट। जैसे कि आप सबको मालूम होगा बच्चा, हमारे जब एक्चुअली किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में जब हमारा वायरस जाता है तो हम उसके लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। ऐसे ही हम अपने फूड प्रिवेंट करने के लिए हम जहां पे ऑक्सीजन ना जाए, इसलिए वहां पे एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। और ये कुछ हमने एक एग्जांपल देके रखा है एंटीऑक्सीडेंट का, दैट इज BHA, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनोजोल। ओके, तो ये एक्चुअली हमारा एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है, जो हमारे फूडिंग आइटम में एक्चुअली यहाँ पे डिसॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे कि हमारा फूड आइटम प्रिवेंट रहे फ्रॉम द रैंसिडिटी। नाउ वैक्यूम पैकिंग, बच्चा आप सब कुरकुरे और डिफरेंट
जितने भी प्रोडक्ट खाते हो बच्चा, उन हर एक में बच्चा इन सब का यूटिलाइजेशन किया जाता है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन इज आल्सो डूइंग इन द पैकेजिंग। रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, आप रेफ्रिजरेटर में बच्चा अपने फूड को रखते हो फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द रेंसिडिटी। दिस ऑल द टर्म्स आई एम द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। और ये हमारे 3 लेक्चर बच्चा टोटली एक्चुअली हमने यहाँ पे अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। फटाफट आप सब बच्चा सारे लेक्चर्स को कंप्लीटली वॉच करो। हैव एनी डाउट देन आस्क विथ मी। हाइफा आपको हमेशा हेल्प करेगा एजुकेशन फील्ड